The last class we studied, we did this question, these questions. And this was your homework. Did you try to do this question? Anybody did this question? Question 1 and 2? Okay, this exercise is completed. Now we will start the new topic, that is rate. Rate, how we can define rate is ratio is the comparison of two similar kind of quantities, and rate is a ratio is a relation or comparison of two different kind of quantities. Like rate is what? The example of rate is typing speed. For example, words per minute. The second example is speaking rate. That is also in the unit of words per minute, okay, or sentences per minute. Relationship between ratio and rate. Ratio और rate जब similar अगर सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज का रेशियो और रेट लें तो वो हो सकता है, ठीक है। रेशियो को रेट की तरह कर सकते हैं और रेट को रेट की तरह कर सकते हैं। लाइक कि अगर जैसे बॉयज और गर्ल्स हैं तो 3:1 का मतलब है कि 3 बॉयज पर गर्ल, तो हम रेट कहते हैं। हमारे पास कोई वेटिंग नंबर तो नहीं है। Now we move to the questions, how we solve the questions of rate. So these are the key points. A rate is a way of comparing how one quantity changes in another quantity. The two quantities can be of the same kind or of different kind. A rate that compares two quantities of the same kind can be converted to a ratio and vice versa. Use rate when comparing how one quantity changes with another quantity, otherwise we use ratio. A rate can be expressed as the number of units of one quantity per n units. रेट को जो है वो पर n यूनिट्स के फॉर्म में लिखते हैं of another quantity. So now move to the exercise. The first question of the exercise is this is our first question. This is 7B. So we write it here. So the question is that a typist types 1800 words in 1 hour. Find the number of words that she can type per minute. Now how we can solve it? यहाँ पर दो क्वांटिटीज क्या है, वर्ड्स है और एक टाइम है, ठीक है, आवर्स में। अब वो ये पूछ रहा है, उसने क्या पूछा है, फाइंड दी वर्ड्स। क्वेश्चन उसने पूछा है कि फाइंड वर्ड्स पर, ये जो फ्रैक्शन का साइन है यहाँ पे, ये पर के हिसाब से होगा, ठीक है ना। सर 30। सो अच्छा बेटा, आप बहुत पास जा रहे हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स लिखेंगे और डिवाइड करेंगे उसको 1 आवर से, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो क्योंकि हमें मिनट्स में आंसर चाहिए, सो वी विल राइट इट इन 60 मिनट्स। So when we divide it, 0, 0 will be divided. 6, 1 is 6, 6, 3s are 18, and 0.
So 30 words per minute. The typing speed is 30 words per minute. The same way, the second question is, Assalamualaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। ये राफिद होंगे, सब लोग से बोलते हैं बड़ा आहिस्ता बोलोगे ना, मेरे पास हेडफोन लगा हुआ है, बहुत तेज आवाज है। सो यस, कौन बताएगा क्या किस तरह होगा ये? यस, हरी अप, एनीबॉडी अमंग यू, कौन बताने जा रहा है? सर इब्राहिम ने, ये बताए, राफिद बताए किस तरह होगा ये? सर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि 9A के कितने क्वेश्चन जो है? 9 के 16 तक कर लिया करो। 16 तक। मैंने भेज भी दिया था कल को। ओके, क्वेश्चन कौन करेगा ये? जी, इब्राहिम शहजाद, इब्राहिम बेग, उस्मान तौसीफ। 64 को 129.9121 से डिवाइड कर देंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें हमें मालूम क्या करना है। सबसे पहले देखिए, फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट मालूम करनी है, कॉस्ट पर यूनिट मालूम करनी है। तो व्हाट वी विल राइट, ऊपर लिखेंगे हम 64 यूनिट्स और नीचे लिखेंगे 120। सही है? यस यस, या मैंने गलत तो नहीं लिखा है? सब सो रहे हैं, जाग रहे हैं? सर, ये उल्टा लिख कॉस्ट दिया। उल्टा लिख दिया, एक बंदा तो जाग रहा है। और तो इसमें हमें ऊपर सर कॉस्ट लिखनी होगी, ऊपर 120.99 लिखना होगा और नीचे लिखना होगा 654। ओके, so 120.99, this is the cost and number of units will be in the denominator. When we divide it, so we will get, so when we divide it, 120.99 divided by 654. The answer is 0.185. So dollar 0.185 is the answer, the cost of 1 यूनिट। ठीक है, और पर यूनिट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। Okay, so third and fourth completed in your homework. Okay, I just write it here. So we will do the second question now. Do these two questions in homework. The same pattern you will do. Now I'm taking question number 2. But the question is, there is a comparison on. The question is, Ali folded 15 paper planes in 20 minutes. Nadia folded 18 paper planes in 25 minutes, and Kumar folded 16 paper planes in 21 minutes. Who folded the paper planes at the fastest rate? ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि कौन तेज काम कर रहा है। तो रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक का पर मिनट निकालेंगे, फिर पता चल जाएगा कि कौन तेज काम कर रहा है। तो हम लिखेंगे अली, ठीक है, अलीज रेट। रेट माना कि पेपर प्लेन्स पर मिनट। ठीक है, so planes per minute means divided by 15 by 20. Just like this we will do for Nadia.
So Nadia's rate is 18 per 25 minutes. And for Kumar, the rate is 16 paper planes per 21 minutes. So when you divide it, so you will get some answer in decimal. So if you divide it manually, so it's not difficult, you will write decimal. And 15, 27 are 140, and you will get 10, then you will write 0, and you will write 5. 25 are 100. Okay, this is 0, 5, 7, 5. Now move to 25 and 18. So point, you will write point, then 0, then 25, 4 the 100, and 25, 7 the 175. You will get 5 here, then again 0, and you will write 75 to the. So for Nadia, the rate is 72 planes per minute, and for Kumar, we divide 16 by 21, so we write point, then 0. So now look here, 2 8s are 16, so 2 7s are 7 on the 7, and 7 2s are 14. Now 10 minus 7 is 3, and 5 minus 1, then you again rewrite 0. So now 21, 6 are 6 1 is 6, 6 2s are 14. So it will be greater. You will take 21, 5. 5 1 is 5, 5 2s are 10. Minus, so it will be 25. Okay, so its rate is 0.75. So we must divide it to get the best rate. So we write 0 here. So it has a difference. We divide it by 6. 6 1 is 6. 6 1 is 6, 6 2 are 12. So we have 4 here. So we got 0.76 planes per minute. So who is the fastest? So Kumar is the first. Okay. Who folded the paper plates at the fastest rate? Kumar folded at the fastest rate. This is the answer. Moving to the next question. A similar question like this. The crime rate measures the number of crimes recorded against the total population in the country. It is calculated by dividing the number of crimes recorded by the total population in the country and then expressed as a percentage. The crime rate for violent and serious property crimes in a particular country in 2022 was 0.004%. Then what the rate of 0.004% means? जी एक्सप्लेनेशन करनी है सिर्फ कौन बताएगा इसका yes everybody is awakened or are sleeping परसेंटेज हमें बताती है कि हर 100 में से कितना हो रहा है ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ है कि अगर ये होता 4 ठीक है 4% लिखा होता तो हमें इसमें क्या मतलब होता है कि 4 आउट ऑफ 100 यानी कि हर 100 क्राइम्स में से 4 क्राइम्स जो है वो क्या है वायलेंट और सीरियस प्रॉपर्टी क्राइम्स
अब क्योंकि 0.004 है, इसका मतलब है कि ये 4/1000 नहीं है। 0.004% का मतलब है कि जब इसको आप चेंज करोगे परसेंट के साइन को, परसेंट का साइन नीचे आ जाएगा, 0.0/100। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बस इस तरह से आप समझो कि ये 4/1000 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 4/1000, यानी कि पूरे 1000 में से 4 क्राइम्स ऐसे हैं। ठीक है, 4 क्राइम्स आर रिलेटेड टू सीरियस violent and serious property crime. Are 4 crimes are violent and serious property crimes out of 1000। यानी कि रेट इसका बहुत ही कम है कि 1000 में से 4 क्राइम्स हो रहे हैं। क्लियर? इसीलिए किसी के मुझे थॉट्स नहीं आ रहा, खासतौर पे उस्मान तौसे और इब्राहिम बेग, इब्राहिम शहजाद, must respond। Question number 4. For each ornament that a worker makes, he is paid $1.15. He makes 4 ornaments every 15 minutes. Find the amount earned by the worker if he works for 3 hours. जी, इस तरह होगा ये वाला। इसने हमें दो तरह से वो दे, क्या बोल रहा है, इतनी देर से ही बोल रहा हूँ मैं, अभी तक आप सुन नहीं रहे हो, क्या कर रहा हूँ, देर से बोल रहा हूँ मैं, तो आप क्या कर रहे हो? So in this question, what is given and what is asked? For each ornament that a worker makes, he is paid $1.15। ठीक है, एक $1.15 मिल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि वो हर 15 मिनट में 4 ऑर्नामेंट्स बनाता है, तो बताओ कि उसको 3 घंटे में कितने पैसे मिलेंगे? कौन बताएगा इसका? जी, क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम ये करेंगे कि वो कितने ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, पहले ये निकालेंगे। सही है, जब वो 15 मिनट में 4 ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, 3 घंटे को, 3 आवर्स को आप क्या करेंगे, 15 आवर्स 15 मिनट्स के उसमें डिवाइड करेंगे। 3 आवर्स चेंज टू 15 मिनट्स स्लॉट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 के 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिनट्स हो जाएंगे। और फिर जब इसको हम डिवाइड बाय 15 करेंगे तो हमें पता चलेगा कितने 15 मिनट्स के अंदर आ रहे हैं। तो 15 1 is 15, there maybe we have 3 remainders, so 15 twos are 30। It means कि 12 क्वार्टर मिनट्स, 12 15 मिनट्स आ रहे हैं इसके अंदर, 12 15 मिनट्स आ रहे हैं। सही है, तो एक 15 मिनट्स में वो 4 बनाता है, तो 12 15 मिनट्स में कितने बनाएगा, 12 टाइम्स 4 हो जाएगा। So we will get 48 ornaments. Ornaments we will get 48 ornaments. So the amount he will
हार्ड। कौन बताएगा क्या हो जाएगा, किस तरह मालूम होगा? यस। 48 ऑर्नामेंट्स बना रहा है, पैसे कितने बन जाएंगे उसके? जी कौन बताएगा? कोई नहीं बता सकता। इब्राहिम बेग, उस्मान तौसीफ, इब्राहिम जी शहजाद। सर उसकी जो अमाउंट है ना जो उसको एक बनाने पे मिलती है उसको हाँ, मल्टीप्लाई बाय 48। कितनी मिलती है? 1.15 मल्टीप्लाई बाय 48। 48। सही, इसको मल्टीप्लाई कर लिया आप, क्योंकि आप करेंगे तो आपको सर थर्टीन ये पॉइंट अरुण पता एट नहीं कौन कौन से मैसेज भेजे जा रहे हैं। कौन? हाँ ये 13.8 अरहम। अभी है, मैं कर देता हूँ, सेटिंग्स। सर 13.8 अमाउंट आएगी। जी 13.8। 13.8 में इन्होंने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि $13.8 सर दिया। मैं 48 से नहीं होगी, 12 से होगी, क्योंकि 4 भी तो 12 से ही मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो इसका कोई रीजन नहीं है मेरा मतलब 48 से मल्टीप्लाई करना। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। गलत बताया था उन्होंने, सर ये 13 48 गलत बताया से था। कैसे डिवाइड होगी, 13 मल्टीप्लाई से, होगी? क्योंकि उसे 48 ऑर्नामेंट्स बनाए ना उसने, ये 15 मिनट में 4 बना रहे हैं। उसको बनाने में खर्चा आ रहा है। ये इसकी कीमत करना है, पैसे बनना है। उसको एक बनाने में 1.5 खर्चा आ रहा है। पैसे मिल रहे हैं, हाँ। और 4 बना पैसे रहे हैं वो मिल रहे 15 मिनट में, 4 बना रहे हैं 15 मिनट में, तो 3 घंटे में वो कितने बनाएगा? सबसे पहले हमने 3 घंटे का हिसाब लगाया कि 15-15 मिनट के वो कितने यानी कि स्लॉट्स होंगे जिसमें वो 4-4 बना लेगा। तो 15 को जब डिवाइड, जिससे डिवाइड किया 180 को 15 से डिवाइड किया, वी गॉट 12। तो 12 15-15 मिनट के उसके अंदर वो मिलेंगे, सही है। के बाद तो मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, कि हर 15 मिनट में 4 बनाया, तो 12 टाइम्स 4 हो गया। 48 टोटल एवरेज बनाएगा, 3 घंटे बनाएगा। और फिर उसको ये पर ऑर्नामेंट रेट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके बाद आया $55.20 मिलेंगे उसको 3 घंटे में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं, होमवर्क की तरफ आते हैं हम लोग। होमवर्क में आप लोग कर लीजिएगा। जी होमवर्क कर लीजिए, attendance में नोट कर लो जरा। जी, होमवर्क में आप करेंगे ये 4 तक हम लोगों ने कर लिया है। अग्रवाल ये वाला कर लीजिएगा होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें आ जाए आप प्रैक्टिस नाउ में, यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चन। 900 ग्राम टीरीज हाँ, ये वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत, ये बिल्कुल हमारा रियल वर्ल्ड क्वेश्चन है। ये आप और कर लीजिएगा, कितना लिख देता है और 31 मार्च 6। और ये पेज नंबर है हमारा 21, सही। पेज पेज 230। ये होमवर्क मैं अभी आपको यहाँ पे दे देता हूँ, और कल इंशाल्लाह हमारी मुलाकात हो जाएगी स्कूल में, तो आप लोग करके लाइएगा ये। और फिर उसके बाद फिर जो है नॉर्मल पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जिससे जो होगा। ओके गाइस, माशाल्लाह गुड मीटिंग विद यू, एंड वी विल मीट अगेन इंशाल्लाह।